తంబలపల్లి నియోజకవర్గం యువగలం పాదయాత్రలో సభకు నమస్కారం. పెద్దలు అల్లా బక్షి గారిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అందరికీ ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం ముస్లిం మైనార్టీలు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు మరి మనం ముస్లింలందరూ కూడా హదీస్ ప్రకారం ఆత్మహత్యని పాపంగా భావిస్తాం. అలాంటిది అబ్దుల్ సలాం గారి కుటుంబం ఈరోజు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఎంత దారుణమైన విషయమో మనం అందరం కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండాలి. ఇంకో పక్కన హాజిరా అనే ఒక ముస్లిం యువతిని మరి అత్యాచార యత్నం చేసి ఆ అమ్మాయిని హత్య చేయడం జరిగింది. ఇంతవరకు పెద్దలు మాట్లాడుతూ ఇలాంటి విషయాలు మీతో మన ముస్టక్ అహ్మద్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే అడుగుతున్నాం. ఆ రోజు పెద్దల సభలో శాసన మండలిలో ఏదైతే అబ్దుల్ సలాం కుటుంబం ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారకులైనటువంటి వాళ్ళపైన సిబిఐ దర్యాప్తు వేయిస్తామని చెప్పినారు. ఇంతవరకు వేయించలేదు. సోదరులారా, మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయండి. మనం ఎప్పుడు ముస్లింలు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి మనం పాపంగా భావించేటటువంటి సమాజం మనది. అలాంటిది ఈరోజు మన ముస్లిం కుటుంబాలు ఆత్మహత్యలు పాలవుతున్నారంటే ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాలా. ఇలాంటి ప్రభుత్వానికి మనం చేదోడుగా ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండదా అని చెప్పి. మరి ఇంకో పక్కన ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే మరి ఎన్నో వేల కోట్ల రూపాయల్ని మన ముస్లిం మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం పెట్టినామని చెప్పి కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్తోంది ఈ ప్రభుత్వం. మరి ఎక్కడ మన అభివృద్ధికి మన సంక్షేమానికి ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఏదైనా ఒక చిన్న పథకం ద్వారా అయినా కూడా లబ్ధి చెందిందా అనే విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండాలి. మరి ముఖ్యంగా ఎంతో వరకు ఇప్పుడు ఉన్నటి వరకు రామారావు గారు స్థాపించినటువంటి మైనార్టీ ఏదైతే ముస్లిం మైనార్టీల సంక్షేమం అభివృద్ధి గురించి ఆలోచన చేసి ఆ రోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మైనార్టీ ఫైనాన్స్ అయితేనేమి, మైనార్టీ వెల్ఫేర్ అయితేనేమి, వక్ఫ్ బోర్డ్ అయితేనేమి, అలాగే మరి ఏదైతే హజ్కి సంబంధించినటువంటి కమిటీ అయితేనేమి, ఈరోజు అన్నీ కూడా నిర్వీర్యమైపోయి మరి ఆయా శాఖలన్నీ కూడా నిర్వీర్యమైపోయి ముస్లిం మైనార్టీల అభివృద్ధిలో కానీ సంక్షేమంలో కానీ మనల్ని కుంటుపడేసిందనే విషయాన్ని మనం ఈరోజు గమనించుకోవాలా. మనల్ని ఎప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తే మాత్రమే మరి తల్లి కాంగ్రెస్ లో ఉన్నటువంటి అప్పటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానివ్వండి, మనం గుర్తొచ్చేది ఓట్లు వేయించుకోవడం కోసం అప్పుడు కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్తారు. మరి ఈ విషయాన్ని మనం గమనించుకొని ఇప్పుడు పెద్దలు జాతీయ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి గతంలో రామారావు గారు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి తర్వాత లోకేష్ గారి నాయకత్వాన్ని మనం ఇప్పుడు ఆయన నాయకత్వంలో మనం అందరం కూడా మన ఏదైతే కమ్యూనిటీ ఉందో మనం ముందరకు పోసినటువంటి పరిస్థితి ఉండాలి. మరి ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఏదైతే రాబోయేటటువంటి మనం మంచి ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి మనం మద్దతు తెలియాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండాలని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు షాజహాన్ గారు ఒక మాట మాట్లాడతారు. షాజహాన్ సాబ్ క్లుప్తంగా మాట్లాడండి సార్ దయచేసి, ఎందుకంటే చేసుకున్నాడు. अस्सलाम वालेकुम। इज्जत माब लोकेश अन्ना गार की और हमारे शंकर अन्ना को और हमारे एमपी कैंडिडेट अन्ना को, हमारे माइनॉरिटी चेयरमैन साहब को, सबको मेरे सामने बैठे हर एक मेरे बाप बहन भाइयों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर पार्टी है ये सिर्फ दिखाने के दांत है, चबाने के नहीं। अगर तुम लोग चबाने गए पत्थर है, दांत टूट जाएंगे। हालात इतने खराब है कि कोई मुसलमान का कोई हमदर्द नहीं है। आपको सिर्फ एक दो एग्जाम्पल बोल के भाई मेरी बात खत्म करता हूं। आपको मालूम होना चाहिए शादी मुबारक तेलुगु देशम पीरियड में 40 पर 5,000 हमारी बहनों को दिया गया है। कितने? 40 पर 5,000 हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को शादी मुबारक स्कीम दिया गया है। जबकि आज की
वाईएसआर पार्टी जगनमोहन रेड्डी साहब ने कितने लोगों को दिया आज तक मालूम है? सिर्फ 40 पर 5। कितने? 40 पर 5। ना गिनती के काबिल है, ना बोलने के काबिल है, ना दिखाने के काबिल है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में लगभग 150 से 200 करोड़ के लोन तेलुगु देशम के पीरियड में जो हमारे सीएम साहब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने दिया है, लोकेश साहब ने दिया है। लेकिन आज के हालात क्या है? आप कभी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये 4 साल में देखे नहीं है, किसी को एक पैसा मिला नहीं है। कोई एक बहन जाकर एमडीओ के ऑफिस के पास कोई एप्लीकेशन देना नहीं है, कोई म्युनिसिपल कमिश्नर के पास देना नहीं है, ना आपको कॉर्पोरेशन में लोन मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपके जो औकाफ की वक्फ प्रॉपर्टीज है, करनौल से लेकर वाइजैक तक लगभग कितने हजार प्रॉपर्टीज का मिसयूज हुआ है मालूम है आपको? 5000 करोड़ के प्रॉपर्टीज का मिसयूज हुआ है। करनौल के अहम आदमी जो है एक पुराना एमएलए लगभग 1000 करोड़ के वक्फ प्रॉपर्टीज को प्लॉटिंग करके बेच दिया, जबकि आज के जो मुस्लिम एमएलए हैं उन्होंने भी वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा करके है। कड़पा के जो डिप्टी सीएम अमजद बादशाह और उनके भाई भी वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा करके है। नेल्लोर में वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा है। मदनपल्ली में मैं हूं बोल के प्रॉपर्टी बच गई, नहीं तो आज की वो प्रॉपर्टी भी अल्लाह के नाम पे चले जाती थी। इसके साथ ही साथ अनंतपुर की प्रॉपर्टी कब्जा हो गई। आप गुंटूर में जाइए, गुंटूर में आपकी प्रॉपर्टी महफूज नहीं है। आप लोगों को इल्म नहीं है आपके वक्फ प्रॉपर्टीज जो आपके बुजुर्गों ने दिए हैं कितनी, आज वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है मालूम है? पूरे आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास। आप कभी गरीब नहीं है, क्योंकि आपको सही तरीके से जिंदगी बसर करना नहीं आया, आपका हक लेना नहीं आया। हम सिर्फ जी हुजूरी करते रहे, सलामी करते रहे, गुलामी करते रहे। इस कौम को किस तरह आगे बढ़कर चलना है किसी के समझ में नहीं आया। आज मैं लोकेश साहब मेरे से खुला वादा किया है, मैं हर हाल में मुस्लिम माइनॉरिटीज का हक को बचा कर रखूंगा। हर हाल में मैं मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ हूं। हर हाल में मैं आंध्र प्रदेश के 5.5 करोड़ के जो अवाम है, जो जनता है आंध्र प्रदेश की, हर एक की आवाज सुनने के लिए मैं आज युवगलम लेके सामने निकला हूं। इस युवगलम का माना क्या है? आपके हुकूक को आपको दिया जाएगा, आपका हक आपको दिया जाएगा, आपके साथ बेहतर सुलूक किया जाएगा कि ऐसा एक स्टेट बनेगा इंशाअल्लाह कि पूरे हिंदुस्तान में ये बेहतर स्टेट होगा जिसमें क़यादत हो, जिसमें सही हक वाले का हक मिलना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आज मुसलमान आंख खोलकर वाईएसआर पार्टी की तरफ जाना, हम खुद अपने गड्ढे में गिर जाना, दोनों भी बराबर है। आज वाईएसआर पार्टी सिर्फ इसका दूसरा चेहरा धोखा है। वाईएसआर पार्टी इसका दूसरा चेहरा गबन है। वाईएसआर पार्टी इसका दूसरा चेहरा सबसे बड़ा आदमी को यकीन दिलाकर गला काटना इनका फरीजा है। आज मैं बोलता हूं, आज जितने भी आपके कोत्तोकोटे के लीडर आए, मैं कौन कौन है नामा नहीं बोलना चाहता, इनका क्या है, क्या औकात है? सिर्फ जी हुजूरी की औकात है इनकी। कोई मुंह खोलकर बात नहीं कर सकता, कोई खुलकर बात नहीं कर सकता। आज हमारी मैडम परवीन जी देखिए, आज बात करते थे, लोकेश साहब मैडम जल्दी खत्म करो, नहीं साहब मैं 2 मिनट और मैं बात करना चाहती हूँ, तो उनको टाइम दिया गया है, क्योंकि ये हक सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी में आज है। एक सेक्युलर पार्टी है, हालात की वजह से बीजेपी के साथ थी, कभी बीजेपी एक नॉन सेक्युलर पार्टी नहीं है, ये बराबर सेक्युलर पार्टी है। आपको मालूम है 10 साल का जो एनडीए के साथ कन्वीनर थे बाबू साहब, उसके हालात अब याद करो। 2002 में गुजरात के जो राइट्स करे हुए थे, उस वक्त खुलकर पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी बात किया, वो चंद्रबाबू नायडू साहब है, जो वाजपेयी साहब को बोले जो हालात आज बिगड़ गए हैं, फला एक आदमी की वजह से बिगड़ गए हैं, फौरन उसको रिकॉल करो बोल के बोलने वाले एक ही वाहिद शख्स थे, वो चंद्रबाबू नायडू साहब है। आज मैं बार बार कह रहा हूं, आज मैं इस पार्टी में ज्वाइन होने के मकसद से मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज पार्टी में ज्वाइन होने के पहले मुझे वाईएसआर पार्टी वाले भी बोले, तेलुगु देशम में भी था, लेकिन मैं सही हूं, मैं कहां जाकर इंसाफ कर सकता हूं, कहां जाकर मैं ये हमारे मुसलमान कौम हर एक के, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2,40,000 लोग के हुकूक को मैं अदा कर सकता हूं, सब सोचकर आज मैं तेलुगु देशम पार्टी में जमा मिल चुका हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको एक हकीकी बात बोलता हूं, एनआरसी का मसला आया,
एनआरसी के मसले में हम सब मिलकर 2 लाख लोगों के साथ चित्तूर में एहतजाज करे थे नहीं? उस एहतजाज में हमने अपनी आवाज पूरे हिंदुस्तान को सुनाया, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम साहब को एनआरसी के मसले पर 3 महीने तक सीएम का अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मालूम है आपको? सीएम साहब के पास गए तो सीएम साहब बोलते थे डिप्टी सीएम को अपॉइंटमेंट। अगर माइनॉरिटी मिनिस्टर डिप्टी सीएम को अपॉइंटमेंट नहीं मिला, ये शर्मनाक बात है और मुसलमान कौम के ऊपर उनकी बहुत कम सोच। तो ऐसी जगह, ऐसी पार्टी में सब लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के बाद वाईएसआरसीपी हमारी है। नहीं, कांग्रेस के बाद अगर किसी पार्टी आपको आंध्र प्रदेश में आपको अपनाना है, वो तेलुगु देशम पार्टी है। आपको याद करो, हैदराबाद के जो राइट्स चलते थे, ओल्ड पुरानी शहर के जो चारमीनार एरिया के, किसके पीरियड में वो सारे राइट्स को दबा दिया गया? चंद्रबाबू नायडू साहब जैसा इख्तिदार में आए, वो क्या करे, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई लोग आइंदा ऐसा मसला करे, मैं तुम्हारी औकात पे तुमको ला लूंगा। मैं आपको यहां तक के वहां एक वक्त आया ऐसे राइट्स हुए तो एमआईएम असदुद्दीन साहब को भी थोड़े बहुत मार खाना पड़ा था। मालूम है आपको? वो खुद आके असेंबली में दिखाए थे, देखिए मेरे साथ किस तरह। क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, जब आदमी एक्शन में आ जाता है, तो एक्शन में जब है तो हर एक के लिए एक ही रूल है, वहां कोई अपना नहीं है, कोई गैर नहीं। जब पुलिस एक्शन आ जाता है, जब सबके लिए। इस तरह उन्होंने इख्तिदार बेहतरीन अंदाज में संभाला। हालात हाजिरा पर आज सारे मुसलमानों के साथ मैं अपील कर रहा हूं, आज मुसलमानों की एक ही वाहिद पार्टी है, वो तेलुगु देशम पार्टी है। आंख खोलकर चलो, जो जबान दिखाते हैं आज तुमको, आपको नहीं मालूम है, आपकी जायदाद महफूज नहीं है, आपके बच्चे महफूज नहीं है, आपके हालात महफूज नहीं है, आप कुछ भी कहीं भी महफूज नहीं है। आपको सिर्फ उनके पास जी हुजूरी करना उनका मकसद है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आज हम सब जागने का वक्त है। अभी आप जाकर कोत्तकोटे की मेरी सारी माँ बहनों, मेरी रिश्तेदारी है कोत्तकोटे से, मैं आपको भी कह रहा हूं, सबको बोलो, आज के बाद हमारा कोई लेन देन वाईएसआर पार्टी से नहीं है। आपका आज से हमारा जो भी लेन देन है तेलुगु देशम पार्टी से, हमारे जो यहाँ के कायद शंकरन्ना है, इनके साथ लेके चलो। आपको जो भी जरूरत है, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ। हमारे लोकेश अन्ना हमारे साथ है, हमारे माइनॉरिटी चेयरमैन साहब हमारे साथ है, सब मिलके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।